Yes, SBI is good. Okay. So now we are going to start with our next class, that is media access control. Here we are going to see our what are the questions that examiner can ask here. So we are having some methods, and along with that we are going to see some MCQ also in this class. So MCQs are also important from exam point of view. So this image. So one marks question, always you can see in most of the examination, examiner asks question, 1 mark question from here in the from this image. Okay. So here we are having multiple access protocol. ठीक है? It means a same shared network can be accessed by multiple people, we can say here. So here यहाँ पे आपके तीन आते हैं protocols. So examiner can ask, okay, what are the three protocols under the multiple access protocol? So random access protocol, control access protocol, and channelized protocol. ये तीन नाम आपको याद करने पड़े. ये थ्री नेम आपको you have to remember. Random access protocol, control access protocol, and channelization protocol. These three are important from exam point of view. Then in random access, there is no rules, we can say it is set defined. But in control access, examiner can ask, we are having three: reservation, polling, and token passing. Then we are having the channelized protocol in the FDMA, frequency division multiple access, TDMA, time division multiple access, CDMA, code division multiple access. So it is allowed. So sometimes the examiner asks question like this: which of the following is not a control access protocol? So ऑप्शन दे देगा आपको, फिर वो पूछेगा which of the following is not और which of the following is in the control access protocol. So अगर नाम याद होगा then आप आंसर दे पाओगे, otherwise you are not able to give the answer. So this is important. Okay. This image, if you want, you can take this screenshot. This is important from exam point of view. Then we are having their random access, or we can say continuous method है. तो इसमें होता है कि इसमें कोई सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो देर इज नो सुपरवाइजर हियर. तो नो स्टेशन इज असाइंड द कंट्रोल ओवर अनदर. ठीक है, किसी स्टेशन के ऊपर दूसरे स्टेशन का कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहता है. ठीक है, तो द स्टेशन हैज डेटा टू सेंड डिफाइंड बाय द प्रोटोकॉल टू मेक अ डिसीजन वेदर और नॉट टू सेंड. ठीक है, आपको ये देखना है कि जो आपका है चैनल, वो या तो आइडियल है या वो बिजी है, बस ये देखना है. सो देर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर ए स्टेशन, कोई भी यहाँ पे टाइम नहीं रहता है. तो देर इज ए रैंडम. तो दैट्स व्हाई वी से इज अ रैंडम एक्सेस. ठीक है, कोई भी रूल स्पेसिफाई नहीं होता. ठीक है, अब अगर कोई दो स्टेशन एट अ सेम टाइम वहां पे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां होता है आपका कोलिजन. So examiner can ask one thing from here. What is collision here? So the right definition is that if more than one station tries to send or there is excess conflict, then it is known as the collision here. ठीक है. So in that we can use Aloha protocol. ठीक है, और यहाँ पे जो MA है, MA का फॉर्म बोलता है मल्टीपल एक्सेस. So in that we are having two other method. We are having CSMA CD. So फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर में आ सकता है कभी कभी. कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन. दिस सीडी का मतलब क्या है, कोलिजन डिटेक्शन. टेल द स्टेशन व्हाट टू डू व्हेन अ कोलिजन इज डिटेक्टेड. क्या करना है जब आपका कोलिजन हो गया है. तो व्हाट इज कोलिजन है? सो इफ आई एक्सप्लेन लेमन लैंग्वेज, तो लेट सपोज देयर इज अ मीडियम. ठीक है, एक कोई मीडियम है. तो यहां से आप भी आ रहे हो, एंड द सेम टाइम यहां से कोई दूसरा भी आ रहा है. सो द मीडियम इज शेड. सो जब दोनों आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट दिस पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, देर इज अ कोलिजन. ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है CSMA CD. तो यहाँ क्या हो रहा है, कोलिजन डिटेक्शन की हम बात करेंगे. देन वी आर हैविंग द CA. तो दैट इज CSMA CA इज कोलिजन अवॉइडेंस. कैसे उस कोलिजन को आप अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इन दैट वी आर हैविंग अलोहा.
ठीक है। अलोहा एक आपका मेथड था, कहाँ यूज होता था मेनली? इट इज फॉर रेडियो। जैसे आपका जो वायरलेस लैन होता है, रेडियो वायरलेस, उसमें अलोहा यूज होता है। सो 1970 में दैट मेथड इज इंट्रोड्यूस। ठीक है। देन वी आर हैविंग द प्योर अलोहा। ओरिजिनल अलोहा प्रोटोकॉल इज ऑल्सो नोन एज द प्योर अलोहा। द आइडिया ऑफ ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम whenever it has a frame to send। जब भी आपके पास में कोई फ्रेम मिले, उस टाइम आप उस फ्रेम को भेज दो। when the channel is shared, जब channel shared है, there is a possibility of the collision between the frames from different station। so let's suppose there is a you can say shared medium here। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि एक आप हो और यहीं पे आपका कोई एक फ्रेंड है, यहाँ पे कोई एक और आपका फ्रेंड है, एंड देर इज a शेयर्ड नेटवर्क, और यहाँ पे भी आपका कोई एक फ्रेंड है, यहाँ पे भी कोई आपका फ्रेंड है। So whenever he want to send a data to this guy, whenever he has a data, he will immediately load this data on this frame or in this medium. So this data will go like this and it is going to receive at this location। so जैसे इसके पास डेटा है, he is going to send। meanwhile अगर इसको भी कुछ डेटा इसको भेजना होगा, so he will also immediately load his data on this shared medium। so यहाँ क्या हो जाएगा? there will be a collision। ठीक है। सो ये क्या कहता है, व्हाट दिस प्योर अलोवा से? इट यूजली मेनली that whenever you have some data, you just share it। Let's suppose we are having the multiple station, station 1, station 2, station 3, station 4, they all are sharing a same network। ठीक है, कोई एक शेयर्ड मीडियम है, ये सब उसको शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग द मीडियम हियर। ओके। नाउ इन दैट, इफ दिस योर फ्रेम, जैसे इसने शुरू में कोई फ्रेम भेजा 1.2, देन इसने एक फ्रेम भेजा 1.12, इसी टाइम पे अगर इसने भी फ्रेम भेज दिया, इसने भी फ्रेम भेज दिया, इसने भी फ्रेम भेज दिया, सो देयर इज अ कोलिजन डिटेक्शन। तो यहाँ पे आपका कोलिजन डिटेक्शन हो गया, क्योंकि सेम जो टाइम है उस पे इतने फ्रेम्स आपस में कोलाइड हो गए। सो दिस ड्यूरेशन इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन ड्यूरेशन। ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द टाइम हेयर। सो जैसे कि आप यू वांट टू सेंड अ डेटा, आपने कोई फ्रेम सेंड किया, देन यू आर गोइंग टू वेट फॉर द टाइम इज 2 into TP। व्हाट इज द 2 into TP? डेटा यहाँ से गया और फिर वहां से रिस्पॉन्स आया। सो जो आपका लेंथ है उसको इंटू 2 कर लो, दैट टाइम इट इज गोइंग टू वेट। अगर यहाँ पे होता है रिसीव एक्नॉलेजमेंट होता है, तो इट मीन डेटा सेंड। अगर नहीं हुआ है, सो आप एक रैंडम ले लो टाइम, उस पर वेट करो, देन अगेन यू जस्ट send your packet। अगर वापिस अगर there is a collision, then again wait for any random time, then again wait। so like this we are having the pure Holo procedure। अब यहाँ पे जो मेथड्स है, सो एग्जाम में ये नहीं आता है यूजुअली, बट व्हाट यूजुअली आस्क, इट इज आस्क फॉर दिस थिंग। ये जो है ये पूछा जा सकता है, वर्नेबल टाइम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नेबल टाइम, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला। सो दिस थिंग कैन बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन एग्जामिनेशन में ये दो चीजें आ सकती है। ओके। नाउ वी आर हैविंग द vulnerable time। so the length of time in which there is a possibility of the collision, that known as the vulnerable time। so let's suppose I am here and I want to send a data to this guy। तो अब मेरा जो डेटा है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, कुछ लेगा टाइम। सो लेट सपोज इसने लिया टी टाइम लिया, इसको मिल गया डेटा, फिर ये क्या करेगा? अक्नॉलेजमेंट देगा, तो फिर से यहाँ पे मेरे को टी टाइम लेगा। तो इसको इन्होंने यहाँ क्या बोला है? 2 into T टाइम। तो जो भी आपका लगा है टाइम, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट टाइम इज ए वर्नेबल टाइम। It means when you send the data and when you are expected to receive the acknowledgement, that total duration is known as vulnerable time। Why? Because there is a possibility of the collision in that respective time। So that's why we say this time as a vulnerable time। So इसका formula रहता है प्योरोलोमा 2 into T, 2 into T। तो ये बस एग्जाम में बस ये पूछा जा सकता है। ठीक है। सो व्हाट इज द टी हेयर?
सो द इट इज द फिक्स लेंथ फ्रेम, ईच फ्रेम इज टेकिंग द सेकंड्स टू सेंड। तो TF ये आपका हो गया टाइम। तो इसका क्या थ्रूपुट रहेगा? तो दैट इज S इंटू जी इंटू डी रेज टू पावर 2G, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम। अब एग्जाम में अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आता है, सो ही कैन आस्क दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्रूपुट व्हेन G वैल्यू इज हाफ? So this statement he will give as it is in the examiner. Examiner will give you as it is this four statement like this, as equal to 0.81, 0.2, 0.3 like this. So if you remember, अगर हल्का बहुत रिकॉल होता है, तो बस ये याद कर लेना कि x max क्या होगा, it is 0.184 when the g value is half. इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है एग्जामिनर के अंदर एग्जाम में। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग द स्लॉटेड अलोहा। अब यहाँ पे हमने अब क्या किया सर, अलग अलग स्लॉट्स बना दिए। यहाँ क्या हो रहा था, वेन एवर यू वॉन्ट टू सेंड, आपका जब मन किया उस टाइम आपने डेटा भेज दिया, ठीक है। जब आपका मन हुआ उस टाइम आपका डेटा सेंड हो गया, ठीक है, अलोहा के अंदर। अब हमारा स्लॉटेड अलोहा ये क्या कहता है सर, ऐसा नहीं चलेगा। जब मन होगा अब आप उस टाइम डेटा नहीं भेजोगे। जैसे कि आपकी ट्रेन आती है, कोई ट्रेन आती है, कोई आपकी ये होती है बस होती है, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये ट्रेन इतनी बजे आएगी, अगली जो आपकी ट्रेन है मेट्रो है इस टाइम पे आएगी। सो नाउ वी हैव अलोकेटेड सम स्लॉट्स like slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5 like this. So if anyone want to send the data, you have to wait for the slot to start. जैसे slot 1 में हम पूछेंगे स्टेशन, you want to send the data, you want to send the data, you want टू सेंड डेटा, यू वांट टू सेंड डेटा। इसने कह दिया नहीं मैं नहीं भेज रहा, मैं नहीं भेज रहा, मैंने स्टेशन 1 हाँ इसको भेजना, तो इसने डेटा को लोड कर दिया एट द स्लॉट 1 टाइम। अब यहाँ पे कोई भी कोलिजन नहीं आया, क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम नो अदर स्टेशन हैज ट्रांसमिटेड टाइम। फिर अगला स्लॉट आया स्लॉट 2, लेट सपोज आफ्टर टी टाइम। अब स्लॉट 2 में इसने बोला कि नो आई डोंट वांट टू सेंड द डेटा। स्लॉट स्टेशन 2 ने कहा यस, एंड ही हैज ट्रांसमिटेड द डेटा ऑन स्लॉट 2, एंड स्टेशन 3 आल्सो ट्रांसमिटेड। सो ये क्या हो गया, सेम टाइम पे जब दो आपस में बात करेंगे, हिंदी में बताता हूँ, जब एक साथ दो लोग आपस में बोलते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती है। तो सेम चीज यहाँ हो रहा है, एट द सेम टाइम बोथ स्टेशन ड्रॉप देयर पैकेट ऑन द शेड सिंगल मीडियम। शेड सिंगल मीडियम पे दोनों ने अपना जो डेटा उसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो स्लॉट 2 में क्या हो गया, कोलिजन। एंड दिस स्लॉट टू टाइम इज नोन एज कोलिजन ड्यूरेशन। ये जो स्लॉट 2 का टाइम है, दिस नोन एज कोलिजन ड्यूरेशन। फिर स्लॉट 3 आया, स्लॉट 3 में फ्रेम 1 इसने भी डेटा सेंड कर दिया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया, सो फिर से हो गया कोलिजन। फिर स्लॉट 4 आया, सिर्फ इसने डेटा सेंड किया। स्लॉट 5 में सिर्फ इसने डेटा किया। स्लॉट 6 में इसने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे बोथ स्टेशन हैव, बिकॉज दिस स्टेशन हैव नो इंटरकनेक्शन बिटवीन देम, ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर separate entities, so they are having no link in between them, but they are having the shared medium. So in slotted allow we just provide a slots, जब slot आएगा then only you have to send the data. अब यहाँ पे क्या हुआ सर, what is the thing that you have improved? सर आपने क्या improve किया इसमें? अब देखो ये देखने वाली चीज है, when we talk about the slotted pure aloha, यहाँ पे जब आपने प्योर अलोहा में देखा कि आपका जो वर्नेबल टाइम है, द वर्नेबल टाइम इन द स्लॉट प्योर अलोहा इट इज 2 into t। सर आपका यहाँ पे ये वर्नेबल टाइम क्या था, 2t था। बट व्हेन वी अपग्रेड अवर सेल, जब हमने अपग्रेड किया स्लॉटेड अलोहा लेके, अब जो वर्नेबल टाइम है वो कितना हो गया, सिर्फ t हो गया। तो 50% आपका जो रिडक्शन यहाँ पे वर्नेबल टाइम के अंदर हो गया। सो यहाँ पे आपने अब क्या के लिए सर, आधा बहुत ज्यादा होता है, आपने अपना वर्नेबल टाइम को हाफ कर लिया। एग्जामिनर में क्वेश्चन आ सकता है लाइक दिस, व्हाट, सी इट कैन मेक एनी क्वेश्चन इफ योर कंसेप्ट इज good, then you can easily solve any question. So in aloha the vulnerable time is 2 into t in aloha or in pure aloha, ठीक है। वर्नेबल टाइम कितना था सर, 2t था। हमने इसमें अपग्रेड किया, हमने स्लॉट्स लेके आए। अब क्या हम किस पे लेके आ गए, टाइम को सिर्फ t पे लेके आ गए। तो जितना आपका रहेगा टाइम उतना ही आपका वर्नेबल टाइम रहेगा। नाउ सर जब टाइम कम हो जाएगा तो थ्रूपुट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, S इंटू जी इंटू
ई रेस टू पावर माइनस जी। मैक्सिमम थ्रूपुट कितना आएगा 0.368, उसमें कितना था 0.1 कुछ था, 0.18 ऐसा कुछ था उसके अंदर। इन प्योर हलवा मैक्सिमम थ्रूपुट कितना है आपका 0.184 इज जो मैक्सिमम थ्रूपुट। बट व्हेन वी अपग्रेड आवरसेल्फ, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द न्यू थिंग, सो दिस थ्रूपुट इंक्रीज। ये जो थ्रूपुट था 0.184 से कितना हो गया थ्रूपुट, ये हो गया 0.68। आपका थ्रूपुट भी 50%, नॉट 50, 100% इंक्रीज हो गया। तो इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन स्लॉटेड अलोहा द टाइम इज रिड्यूस टू टी एंड द थ्रूपुट इज इंक्रीज 100%। यहाँ पे 0.18 था, इसका 100% यहाँ पे थ्रूपुट इंक्रीज हो गया। नाउ द थ्रूपुट इज 0.368 when g value is 1. So these are the two things we are having as pure aloha and slotted aloha. So slotted aloha, this line is important. देखने क्यों नहीं ले रहा? Slotted aloha was invented to improve the efficiency of pure aloha. If you are able to understand this line, then you can easily understand and you are able to easily solve the theoretical question asked by the examiner. जो theoretical question है that you can able to solve. अब ये तो हो गया अलोहा अलोहा। अब सर बात आती है CSMA की। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्रिएशन मल्टीपल एक्सेस, A B C D आपके अलग अलग स्टेशन है। ए सिग्नल, ए ने यहाँ पे अपना सिग्नल भेजा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बी है, बी ने भी सेम टाइप में सिग्नल भेजा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वो एरिया है जिसमें कोलिजन हो रहा है। सो दिस एरिया व्हेन बोथ सिग्नल एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ कोलिजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेस टाइम मॉडल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं CSM। स्पेस टाइम मॉडल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और मेनली कहाँ पे यूज होता है, मेनली कहाँ यूज होता है, तो मेनली वाईफाई। आपने यूज किया होगा सर वाईफाई। इन वाईफाई वी आर हैविंग दिस CSMA वाईफाई। इसका IEEE स्टैंडर्ड रहता है क्या है 108, नहीं सॉरी 802.11। व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड, 802.11। तो एग्जामिनर हो सकता है IEEE स्टैंडर्ड पूछ ले। तो CSMA is based on the principle sense before transmit और लिसन बिफोर टॉक। जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो, सबसे पहले देख लो कि सब चुप है या नहीं। इफ एवरी वन इज क्वाइट देन यू कैन स्पीक, so that there will be no collision. So CSMA can reduce the possibility of the collision, but it cannot eliminate. Possibility हम reduce कर सकते हैं, but ऐसा कुछ है नहीं कि eliminate ही कर दे। The reason shown in the figure, so where we are having the space and time का हमने यहाँ पे मॉडल लिया CSMA का। The station are connected to a shared channel, कोई एक shared channel का हमने यहाँ पे कनेक्शन लिया है। तो in other word, station may sense the medium, फाइंड इट्स आइडियल, अगर आइडियल है कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आइडियल होगा फिर क्या करेगा, यहाँ पे डेटा सेंड कर देगा। ये आपका कंसेप्ट होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट इन CSMA। ठीक है, अब इसमें वर्नेबल टाइम क्या रहेगा, वर्नेबल टाइम इज योर प्रोपोगेशन टाइम। तो जितना टाइम उसको यहां से वहां पहुंचने में लगेगा वो आपका इसमें वर्नेबल टाइम रहेगा, जो यहाँ पे आपने T1 पे स्टार्ट किया था। अब लेट सपोज A और D के अंदर डिस्टेंस कितनी है, लेट सपोज 1000 किलोमीटर है, और लेट सपोज 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस है ए और डी के अंदर। ठीक है, अब आपका जो डेटा है वो लाइट की स्पीड से जा रहा है। लेट सपोज योर डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से जा रहा है, बट कुछ तो टाइम लगेगा उसको, वो यहां से यहाँ पहुंचने में उसको लेट सपोज कितना टाइम लगा, लेट सपोज 2 नैनो सेकंड, लेट सपोज 2 नैनो सेकंड इट विल टेक व्हेन यू सेंड द डेटा फ्रॉम A to D and the distance is between, let's suppose 10,000 kilometer, let's suppose it take 2 nanosecond.
Then those 2 nanosecond is known as vulnerable time. So here vulnerable time is equal to propagation time. जो vulnerable time है that is equal to your propagation time. इसके इक्वल है, ये आपके propagation time के इक्वल है. Okay? Then we are having this also important from exam point of view. ये थोड़ा सा important है exam point of view के अंदर से. Now we are having the careers and multiple access. In that we are having a persistent man. Persistent method में 3 मेथड होते हैं. So what should a station do if the channel is busy? अगर आपका चैनल बिजी है तो आप क्या करोगे? What the station will do if the channel is ideal? अगर आइडियल है तो आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम 3 मेथड्स लेके वी हैव इंट्रोड्यूस 3 मेथड. परसिस्टेंस मेथड, वन परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट, ये तीनों याद कर लेना. Examiner can ask question from here. So we are having the questions also here related to persistent method. So we are having the question. All questions we are going to see here related to persistent. Soon we are going to see all the questions here which are related to a president. Once you understand the concept, then you are able to solve the questions easily. But concept should be clear. So here we are focusing only on the theoretical part. सबसे पहले ये 3 नाम याद करने पड़े. You have to remember 3 names here. So if you are having a note, so wherever you want, you can write it, but you have to remember these 3. वन प्रेसिडेंट, नॉन प्रेसिडेंट, पी प्रेसिडेंट, ये 3 ही है, इसमें और कुछ नहीं है. What examiner can ask question? Let's suppose he can ask which of the following is not a type of present method in CSMA. Like which is one of the following is not a type. आपको याद है सर, वन होता है, नॉन होता है और पी होता है. उसके अलावा जो भी आएगा विच इज ऑड वन आउट. ओके. नाउ वन प्रेसिडेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, आप उसको सेंस करो. सिंपली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. इन दिस मेथड द स्टेशन फाइंड द आइडियल. जैसे ही उसको आइडियल मिलेगा, आप अपना डेटा को इमीडिएटली सेंड कर दो विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. आप क्या करो, यहाँ पे सेंस किया, आई विल जूम हियर. आपने यहाँ पे क्या सेंस किया, बिजी है. फिर से सेंस किया, बिजी है. सेंस किया, बिजी है. बिजी 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 बिजी. वंस यू फाइंड इट इज आइडियल, जैसे आइडियल मिला यहाँ पे, immediately send your data. Don't wait, immediately send your data. This sent by one president. So one president कहता है whenever you find the channel ideal, so at the same exact moment you can transmit your data. Now we are having the non-president method. So in this method, a station has to send a frames to send sense line. If the channel is ideal, then send immediately. अगर ideal है तो आप भेज दो. If the line is not ideal, अगर ideal नहीं है, then wait for random time of amount, then sense line again. आपने सर यहाँ पे सेंस किया, आपने कोई भी random time ले लिया, let's suppose 5 second. Then after 5 second again you are going to sense ideal मिला. Then again any random time, let's suppose here we are saying 6 second, any random time. So any random time we are going to check. Then after random time again we are going to check, is this busy or not? Hey, it is not busy, then you can transmit your data when you find the channel is ideal. जैसे आइडियल मिलेगा आप सेंड कर दोगे, बट बिजी रहेगा, सो यू आर गोइंग टू वेट फॉर फ्यू सेकंड, फ्यू रैंडम सेकंड. बट व्हाट हैपन इन दिस पी वन प्रेजेंट, कंटिन्यूअसली चेक करते रहो, आपको लगातार चेक करना है. बट यहाँ पे क्या है, एक रैंडम टाइम तक वेट कर जाओ, रुक जाओ, लगातार मत देखो, कुछ टाइम रुक जाओ, उसके बाद देखो कि बिजी है या नहीं है. बट वन में क्या है, लगातार देख रहे हैं. सो इन रियल लाइफ लेट सपोज यू वांट टू क्रॉस अ रोड. तो जैसे कोई रोड है, रोड को आपको क्रॉस करना है, यू वांट टू क्रॉस द रोड. तो हम क्या यूज करते हैं, वन प्रेसिडेंट यूज करते हैं. वन में क्या होता है, हम लगातार देखते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई, जैसे ही रोड एम्प्टी दिखती है हम फटाफट रोड को क्रॉस क्रॉस कर लेते हैं. तो वन प्रेसिडेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस.
इन नॉन वी आर गोइंग टू वेट फॉर स्पेसिफिक टाइम, देन हम उसके बाद वापस देखते हैं उसको, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग द पी प्रेसिडेंट। पी प्रेसिडेंट क्या यूज करता है? इट यूज इफ द चैनल हैज टाइम स्लॉट्स विद अ स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम। जितना उसको लगेगा टाइम, उसके अंदर हम पी प्रेजेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं। इसमें होगा क्या? द प्रोबेबिलिटी पी स्टेशन सेंड द फ्रेम, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी पी स्टेशन उसको सेंड करेगा? द प्रोबेबिलिटी रहेगी क्या? वन माइनस पी, द स्टेशन वेट, स्टेशन ने वेट किया, जैसे इसको यहाँ पे आइडियल मिला, अब ये यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करेगा। तो जो टाइम स्लॉट अलाउड था, हमने देखा था स्लॉटेड अलोहा के अंदर, वी हैव सीन द इन स्लॉटेड अलोहा, ये जो स्लॉट्स है, स्लॉट्स पर वेट करेगा, देन यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाएगा कि कैन आई सेंड द डेटा और नॉट। सो हेयर वी आर हैविंग अ मेथड, तो यहाँ पे अपना एक मेथड है। सो हम कुछ स्लॉट के लिए वेट करेंगे, फिर स्लॉट के बाद देखेंगे क्या वो आइडियल है, बिजी है। अगर बिजी है तो वापस आ जाएंगे, अगर आइडियल है देन वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा। सो हेयर इन पी वी आर यूजिंग अ प्रोबेबिलिटी, हम यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे टू चेक द प्रोबेबिलिटी। अगर हमें यहाँ पे आइडियल मिलता है तो हम स्लॉट तक वेट करेंगे, अगर नहीं मिलता है देन वी आर गोइंग टू सेंड द डेटा। तो ये तीन मेथड होते हैं आपके इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी एस एम ए, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम एमसीक्यू आल्सो। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सी एस एम ए, व्हाट डज द प्रेसिडेंट रिफर्स टू? प्रेसिडेंट्स का क्या मतलब होता है यहाँ पे? द मेथड यूज टू हैंडल द कोलिजन, no, the way the station listen the channel before transmitting. Yes, B is the answer of this question. Next question, which one of the following is true about one president CSMA? कौन सा ट्रू है वन प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग? वन ये क्या कहता है? कंटिन्यूअसली चेक कर दो, स्टेशन ट्रांसमिट द डेटा इमीडिएटली इफ द चैनल इज आइडियल, जैसे आइडियल मिला फटाफट डेटा को ट्रांसमिट कर दो। व्हाट आर द मेन ड्रॉबैक ऑफ वन प्रेसिडेंट? कौन सा है इसका ड्रॉबैक? इसका ड्रॉबैक क्या है आपका? हाई कोलिजन प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेम टाइम पे और भी जो चैनल है दे आर आल्सो चेकिंग एट द सेम टाइम, द अदर चैनल्स आर आल्सो चेकिंग एंड एट द सेम टाइम ऑल द रिमेनिंग चैनल विल ट्रांसमिट द डेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज अ हाई कोलिजन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, इन नॉन प्रेसिडेंट सीएसएम में व्हाट डज अ स्टेशन डू इफ द चैनल इज बिजी? अगर चैनल बिजी है तो ये क्या करेगा? इन नॉन प्रेसिडेंट के अंदर ये क्या करें? यहाँ पे रैंडम टाइम हम वेट कराते हैं, यहाँ पे वी यूज रैंडम टाइम। अभी अपन ने देखा था रैंडम टाइम यहाँ पे वेट होगा जरा, तो यहाँ क्या हो रहा है? रैंडम टाइम माउंट वेट, रैंडम टाइम माउंट वी आर गोइंग टू वेट हियर, ठीक है। विच सीएसएमए मेथड रिड्यूस द कोलिजन बिफोर बट इज इंक्रीज द आइडियल टाइम? आइडियल टाइम इंक्रीज हो किस में हो जाएगा? नॉन प्रेसिडेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम रैंडम टाइम को वेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपका कोलिजन है उसको रिड्यूस कर दिया, बट जो टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है। आइडियल टाइम कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ रैंडम टाइम। नाउ व्हाट डज द पी रिप्रेजेंट इन द पी प्रेजेंट? पी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दिस पी नोन एज अ प्रोबेबिलिटी। इन विच टाइप ऑफ सीएसएम में पी प्रेसिडेंट इज यूज? किस में यूज होते हैं? स्लॉटेड जो चैनल रहते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसको, पी प्रेसिडेंट, स्लॉटेड चैनल्स के अंदर। हाउ डज अ नॉन प्रेसिडेंट सीएसएम में कंपेयर टू वन प्रेसिडेंट सीएसएम में टर्म एफिशिएंसी? कैसे काम करता है? नॉन में क्या होगा? आपका जो कोलिजन है, द कोलिजन इज गोइंग टू रिड्यूस बट द टाइम फॉर द आइडल इट इज गोइंग टू इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज वी वेट फॉर द रैंडम amount of time in non. इसमें क्या होगा? there is a high probability of the collision because other stations are also going to transmit at the same time. Which one of the following is CSM method is best suited for the time slotted channel? कौन सा best suited है time slotted channels के लिए? So best आपका है probability, best is P president. इन सीएसएम में प्रेसिडेंट मेथड इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ कोलिजन? किसके अंदर सबसे ज्यादा कोलिजन आ सकता है? वन प्रेसिडेंट में हाई कोलिजन आपका, देखो जो अपन देखा था वन प्रेसिडेंट वाला, ये देखो हाई प्रेसिडेंट क्या होगा यहाँ पे? इसमें आपका इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, सो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम।
So in next class, we are going to see more about the next topic.